ऐसा नहीं है कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। कश्ती है तो किनारा मिलेगा ज़रूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी बनी रही। आई हैव टू से, डियर स्टूडेंट्स, this is a very crucial time for all of us. You know, everything can't be right overnight. It may take a month time, 2 month time, or even a year. So you have to be very careful. Take the initiative of reading right from today. Those students who haven't tried their level best, they must write from today. Life is not dancing, it is wrestling. I usually says, life is not dancing, it is wrestling. And in the field of life, we have to wrestle each and every moment. जीवन कोई नाच गाना नहीं है, ये रेसलिंग है, ये कुश्ती की तरह से है, और हमें हर एक मोमेंट में हर एक परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना है. It is my hand-folded request to all to start reading right from today. And I came to know that you are not watching the video till the end. I have a suggestion to you to watch the video till the end for your better results. I hope you certainly do so. Today I would like to discuss the question from the chapter Indigo. And these are actually not the textual question, but important questions, other important questions. So I would like to discuss right from the first question. See, why do you think Gandhi considered Champaran episode to be turning point in his life? Gandhiji considered Champaran episode to be the turning point in his life because here he got a huge success of civil disobedience. He considered Champaran to be turning point because here he got mass movement. He considered Champaran episode to be the turning point in his life because here on he got the first success and he was able to reduce the fear of poor peasants from Champaran. I would like to say that Champaran episode was considered to be the turning point in Gandhi's life in two ways. The first, you have to remember that when Mahatma Gandhi went there, at that time sharecropping system was going on. According to that system, the poor peasants had to grow 15% of their land with the indigo, and they had to surrender the entire indigo harvest as rent, and that was very irksome, that was very troublesome, and Gandhiji wanted to make them free from this agreement. Apart from that, later on, when Germany had developed the synthetic indigo, it is very obvious that the prices of natural indigo fall down. That's why the Britishers want that they will make them free from the agreement. They didn't know exact position of artificial indigo at that time. Okay, Gandhiji provide them refund of 25% at least, and that was a great reform. But you can't say that that was the only point. You can say that गांधी जी की लाइफ में वही एक ऐसी बात थी जिससे वो एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट बन गया उसके जीवन का. एक दूसरा पहलू आपको याद रखना है, एंड दैट वाज द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन. एट दैट टाइम गांधी जी डिडंट लिमिटेड हिमसेल्फ, गांधी जी was not limited to reforms of political and economic solutions. Obviously, he did many things. He was able to recover the 25% of money of the poor farmers, and the Britishers have to lose their prestige. But apart from that, you have to learn that basically the basic idea is that here to mention that he did several things for the social upliftment of those people. He fought a long battle there. What
he started opening schools in Champaran. At the very initial stage, 6 primary schools were opened. A few teachers came there to teach voluntarily. And in the same way, Gandhiji also did several things in considering the point of, the need of sanitation, social sanitation. Here on, health conditions were miserable. He also did several things regarding health. Few doctors came forward voluntarily. 3 medicines were provided there: castor oil, quinine, and sulfur ointment. So we can say the overall scenario is that Gandhiji did a different task there to handle the situation. He was there as social reformer. He was there, just like a Mahatma who solved each and every problem of the poor peasants. And where the most important thing you have to mention is that he got, the confidence of the public there. तो हम क्या कहेंगे, चंपारण एपिसोड गांधी जी के जीवन का एक बदलाव केंद्र था, बदलाव बिंदु था. उसके लिए उसके राजनीतिक और आर्थिक सुधार ही नहीं थे, बल्कि उसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के साथ साथ उसने सामाजिक कार्य भी किए. पहला जो पड़ाव था चैप्टर में आप देखोगे तो वो किससे कंसेंट करता है, वो सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सुधारों तक जाता है. लेकिन लेटर पार्ट में जब लास्ट में तुम पढ़ते हो तो देखते हो कि किस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने काम किया. उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सफाई की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता. उसने देखा कि स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से बहुत ज़्यादा डल है. वॉलंटरली लोग आगे आए काम करने के लिए, और एक प्रकार से वो जो मूवमेंट था चंपारण का, वो गांधी जी के जीवन का क्या बन गया, एक बदलाव बन करके आया. और गांधी जी स्वयं कहते हैं, जब लुईस फिशर इंटरव्यू लेते गांधी जी का, तो उनके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था कि चंपारण एपिसोड वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर. सेकंड देखिए, हाउ वॉज गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स. हाउ वॉज गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर. It's not a simple task to influence the lawyer. When he was subjected to ask question on regarding why he didn't left Tirhut, at that time he consulted with the lawyers, and they said that they just came to meet Gandhi, and if he went to prison, then definitely they would be, left that particular spot and went to their houses. Right now, Gandhiji said that he was, ready to go to jail. And after the consultations of those lawyers, Rajendra Prasad mentioned, Dr. Rajendra Prasad mentioned that having been the, far away from Delhi, if Mahatma Gandhi is ready to go to prison for the welfare of these poor peasants, we are in the adjoining districts and we claim to help them. So it is our moral duty to, we must fight the battle. तो गांधी जी ने उनको इन्फ्लुएंस इस प्रकार से किया. उसने कहा कि यदि वो जेल चला गया तो वो क्या करेंगे. उन्होंने कहा कि वो वापस घर चले जाएंगे. गांधी जी ने कहा कि फिर इन किसानों की समस्या का क्या होगा. उन्होंने मंत्रणा की. मंत्रणा में ये बात सामने निकल करके आई, उनके विचार विमर्श में ये बात निकल करके आई कि निश्चित तौर पर गांधी जी जब दूर से आकर के उनकी सहायता के लिए जाने के, जेल जाने के लिए तैयार है, तो वो तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं. और इसके साथ साथ वो तो दावा करते रहे हैं कि वो उनकी बैटल को कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं. तो इन्फ्लुएंस गांधी जी के व्यवहार से वो है. उनको लगा कि जब गांधी जी दिल्ली से आकर के दिल्ली से आकर के इतनी दूर से यहाँ इनकी किसानों की भलाई के लिए जेल जाने तक के लिए तैयार है, तो उनकी भी कुछ मॉरल ड्यूटी बनती है, जबकि वो क्लेम करते हैं कि वो उनको सहायता कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. जनरल एटीट्यूड क्या था एवरेज इंडियन का. जो भी लोग होम रूल, स्वशासन की वकालत करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी. And you know very well, at that time, it was a very extraordinary thing
for J.B. Kripalani to shelter महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को शरण किसने की? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उस समय, और वैसे भी किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उन दिनों में सब शासन की वकालत करने वाले लोगों को शेल्टर देना एक क्राइम था, इसलिए वो लोग डरे रहते थे। तो आपको क्या कहना है कि एटीट्यूड क्या था एवरेज इंडियन का? दे वर अफ्रेड ऑफ प्रोवाइडिंग द शेल्टर टू द पीपल हु एडवोकेट होम रूल। जो एडवोकेसी करते थे, होम रूल की वकालत करते थे, उनके खिलाफ कानूनी प्रावधान था, इसलिए लोग उनसे डरते थे। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने चाइड क्यों किया, धमकाया क्यों लॉयर्स को? देखिए, वन थिंग यू हैव टू लर्न राइट फ्रॉम हियर ऑन, that when Gandhiji came to know that lawyers were taking a huge amount to take their cases to the court, Gandhiji baffled totally. He was shocked to hear that how it is possible to take such peasants cases to the court, and he said very simply that taking such cases to the court is useless. उन्होंने कहा कि किसानों के केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस है, और उन्होंने वकीलों को चाइड इसलिए किया क्योंकि वो एक बड़ी पैमाने पर फीस ले रहे थे उनके केस को कोर्ट में ले जा कर के लड़ने के लिए। गांधी जी ने क्या कहा कि इस प्रकार से केसेस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस है। पहला काम क्या करना चाहिए? टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर। गांधी जी सेड दैट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट टू मेक देम फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आतंक से उनको मुक्त करना होगा, उनको भय से मुक्ति दिलानी होगी, और तुम्हें इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाना बंद करना चाहिए। सो दैट्स वाई गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स। गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। व्हाट डिड ही डिसाइड इन द एंड एंड वाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का द्वंद्व। और ये कर्तव्यों का द्वंद्व कहाँ से आता है? व्हेन गांधी जी आस्क्ड टू क्विट द चंपारण, जब गांधी जी को कहा गया कि वो चंपारण को छोड़ दे, उस समय उसने कोर्ट में कहा कि ही वॉज इन कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। और ये द्वंद्व क्या था आपको याद रखना है। पहली बात ये थी कि ही डिडेंट वांट टू बी ए लॉ ब्रेकर। ध्यान रखिए, आपको लिखना है कि ही डिडेंट वांट टू बी ए लॉ ब्रेकर फर्स्ट, वो कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता था। एंड सेकेंड, ही वांटेड टू डू द ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमैनिटेरियन, मानवता की सेवा भी करना चाहता था। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करना चाहता था। दो बातें एक साथ चल नहीं सकती थी, तो उसको एक सेलेक्ट करना था। कन्फ्लिक्ट था इस बात में, लेकिन बाद में उसने क्या अपने आप को जो है किस बात के लिए वो सहमत हुए? अपनी कॉन्साइंस की आत्मा, अंतरात्मा की आवाज़ को वो माने। और अंतरात्मा की आवाज़ ये कह रही थी कि उसको कानून की अवहेलना करनी पड़ेगी, कानून को तोड़ने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि उसको उससे बड़ी जो आत्मा की जो आवाज़ है, जो कोर्ट से भी बड़ी आवाज़ है, कानून की से भी ज़्यादा बड़ी है, अंतरात्मा की आवाज़, उसको सुनना पड़ेगा, उसको मानवता की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए उसने कोर्ट में भी कहा कि जो भी प्लेंटी ड्यू है वो दीजिए, क्योंकि ही वॉज इन्वॉल्व्ड। उसने कहा कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड, उसकी गलती थी, बट ही वांटेड टू डू द ड्यूटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए काम करना चाह रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आई होप दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स अपॉइंटेड रादर स्मॉल, व्हाई डिड गांधी एग्री टू इट? क्रशिंग माउंटेन एविडेंस थे बिग प्लांटर्स के खिलाफ कि निश्चित तौर पर उनके पैसे को एक्सटॉर्टेड किया गया है, हड़पा गया है, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी ने सिर्फ पहले 50% रिफंड करने के लिए कहा और उसके पश्चात 25% रिफंड पर एग्री हो गई। कहता कि ऐसा क्यों था? देखिए, when they came to know that it was the moral victory of Gandhiji, they wanted to take this case to the court. सिंपल बात आपको ये समझनी है कि जब उनको लगा कि यहाँ पर गांधी जी की जीत हो गई है, तो वो चाहते थे कि इस केस को वो कोर्ट तक लेकर के चले जाएं, किसी तरीके से इसके अंदर जो है व्यवधान पैदा कर दिया जाए। और ये काम करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी से पूछा कि वो कितना रिफंड चाहते हैं, एंड गांधी जी मेंशन दैट ही वांटेड ओनली 50% ऑफ द रिफंड, ही वांटेड ओनली 50% रिफंड, एंड हियर ही सीम्ड वेरी एडमेंट।
तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, फिर उनकी तरफ से क्या आया, बिग प्लांटर्स की क्लब से, दैट दे वांटेड टू गिव 25% ऑफ द रिफंड, and they wanted 25% of the refund to the farmers because they wanted to take this case to the court. They wanted to linger on the aspect. That's why they said that certainly they would provide 25% refund to the farmers. And everyone surprised to see that Mahatma Gandhi agreed 25% of the refund. लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना आपको कि the amount was less important. What was the more important fact here is that the big planters lose their prestige. उनकी प्रेस्टीज चली गई और अमाउंट 25% रिफंड भी उसको किसानों को मिला। तो ये बात वो पहले समझ गए थे कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए गांधी जी ने कहा कि 25% रिफंड ही पर्याप्त है, आप 25% रिफंड कर दीजिए, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो इस केस को कोर्ट में ले जाना चाहते थे। कोर्ट में ले जाने के पश्चात वो लंबे समय तक वो केस चलता, उसकी आउटपुट नहीं आती और इस वजह से ये एक तरीके से जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो कॉन्फिडेंस पीजेंट को मिलना चाहिए था, वो निश्चित तौर पर इससे बाधित हो सकते थे। आप समझ गए, इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि वो 25% रिफंड ही उनको देते। देखिए आगे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय R.K. शुक्ला टू परsuade गांधी जी टू गो टू चंपारण। He was the only person who wanted Gandhi ji to take Champaran, and the mention of Rajkumar Shukla was in the very initial part of this chapter, that he was from Champaran, he wanted that Gandhi must be in Champaran, और किसी ने उसको कहा था कि यदि आपको सॉल्यूशन प्राप्त करना है इस समस्या का, चंपारण एपिसोड का शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का अंत करना है, तो यू मस्ट कंसल्ट टू महात्मा, तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा महात्मा से। और यहाँ गांधी जी जो है शुरुआत में सहमत नहीं थे। गांधी जी की बहुत सी प्रायर अपॉइंटमेंट्स थी उस समय। व्हेन राजकुमार शुक्ला वेंट देयर वर सो मैनी प्रायर अपॉइंटमेंट्स ऑफ गांधी एट दैट टाइम। फर्स्ट ही हैड टू गो टू द कन्वेंशन ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी in Lucknow. After that there were several appointments in Sevagram Ashram as well. But that person, Rajkumar Shukla, never left Gandhi's side. He always stayed with him. हमेशा उसके साथ रहा और आखिरकार उसकी बात को माननी पड़ी। How did the news of Gandhi's advent affect the people? Advent arrival होता है, advent का मतलब arrival। तो किस प्रकार से अफेक्ट किया? हर जगह एक ही बात थी, हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा था कि देयर इज़ ए महात्मा हु वांटेड टू डू समथिंग फॉर अस। एक महात्मा है जो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। जैसे जैसे ये खबर फैलती चली गई, लोग वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। कुछ अपने व्हीकल्स के द्वारा आए, कुछ पैदल चल कर के आए। थ्रू आउट दी स्टेट्स एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट से चंपारण के उसके आसपास से भी लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी फॉर द कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज चंपारण। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? मैंने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया अभी आपके सामने, उस समय भी बताया था कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने क्या किया। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अप्रोच क्या थी। नाउ इन द फर्दर पार्ट वी केम टू नो दैट व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ गांधी जी फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज चंपारण, द डिस्ट्रिक्ट चंपारण। उसके लिए देखिए तीन चीज़ें हैं। पहली क्या है कि शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। सबसे पहला काम क्या किया रिगार्डिंग एजुकेशन? 6 प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन एट द वेरी इनिशियल स्टेज इन चंपारण, और उसको कोई टीचर हायर नहीं करने पड़े। वॉलंटियरली जो टीचर्स थे वो वहाँ पर आने शुरू हो गए, वॉलंटियरली टीचर्स आए। ठीक है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उसने सामाजिक कार्य भी करने शुरू कर दिए। सामाजिक तौर पर जो है लोग बेसिकली क्या समझते थे, बहुत ही गरीब थे, उनकी सोच संकीर्ण थी, नैरो माइंडेड थे। गांधी जी ने इसका काम किसको दिया? कस्तूरबाई को दिया। देवदास भी पहुंच गए आश्रम से, यंगेस्ट सन ऑफ गांधी, उसको भी कुछ काम सौंपे गए। लेकिन इस दौरान गांधी जी ने एक आउटर लुक बनाए रखा, अपने आश्रम के ऊपर लगातार अपना ध्यान बनाए रखा, ध्यान केंद्रित रखा, और वो लगातार वहाँ से भी कन्वर्सेशन करते रहे। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस थी, एक लंबी प्रोसेस थी सामाजिक उत्थान के लिए। सामाजिक तरीके से उनको सबल करने के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया। मेडिसिन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में और जनरल अवेयरनेस के क्षेत्र में उसने काम किया।
स्वास्थ्य के लिए 3 ही मेडिसिन उस टाइम उपलब्ध थी, चैप्टर में बताया गया। कैस्टर ऑयल दिया जाता था, कुनीन दी जाती थी और सल्फर ऑइंटमेंट दी जाती थी, लेकिन इनका अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाता था। तो बहुत से काम गांधी जी ने वहाँ पर किए, ये आपको लिखना है। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? 2 बातें हैं। पहला, दे थॉट दैट दे हैव सम डिफेंडर्स एज वेल, उनको पता चल गया कि उनके रक्षक हैं और अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। जब से उनको 25% रिफंड मिला तो पहली बार उनको विश्वास हुआ कि उनके रक्षक हैं, उनके अधिकार हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये प्लाइट ऑफ पीजेंट्स, किसानों की जो दुर्दशा थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया, पॉजिटिविटी उनके अंदर आई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया और गांधी जी भी यही चाहते थे। अगला क्वेश्चन, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन बिहार। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि देयर वाज ए वेरी रक्सम ट्रबलसम सिस्टम एट दैट टाइम, दैट दे हैव टू ग्रो almost 15 to 20% of the surrounding with the indigo and they had to surrender the entire indigo harvest as rent. अब उनको वो किराए के ऊपर देनी पड़ती थी। किसान इससे बहुत ज़्यादा विचलित थे। बाद में जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो क्रिएट कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस समय इसके प्राइसेस कम हो गए तो उन्होंने उसको मुक्त करना चाहा, और जब मुक्त करना चाहा तो उन्होंने इससे पैसे लिए, एक्सटॉर्टेड कर लिए पैसे, और वो वापस जब वो उसको देने की बात आई तो गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। 25% का रिफंड दिलवाने वो कामयाब रहे। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। हाउ डिड गांधी जी टीच ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस? वाई डिड ही अपोज टेकिंग हेल्प फ्रॉम सी एफ एंड्रयूज? गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पाठ कैसे पढ़ाया? गांधी जी के साथी जब सी एफ एंड्रयूज, व्हेन ही वाज गोइंग टू फिजी आइलैंड and he wanted to help Gandhiji, and even the lawyers wanted that it is very good for us that an Englishman should be in our side to help us. गांधी जी ने कहा कि इस अनइक्वल फाइट के अंदर किसी अंग्रेज का हम साथ लें, ये हमारे मानसिक दुर्बलता को शो करता है। हम सी एफ एंड्रयूज की एक अंग्रेज होने के नाते सहायता नहीं ले सकते, ये हमारे हृदय की मानसिकता को, दुर्बलता को शो करता है, गांधी जी ने कहा। और इस प्रकार से उन्होंने हमें सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया। उसने इस प्रकार से सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया कि हम सी एफ एंड्रयूज की सहायता नहीं लेंगे, क्योंकि बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड मैंने आपको पहले जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो भी सारे बताए थे। इसके साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको बताएं। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से याद करने, इनको क्रैमिंग नहीं करना है। यू नेवर ट्राई टू क्रैम दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के पश्चात कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उसको अच्छे ढंग से लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे फैक्ट्स को पढ़ लिया है। फैक्ट्स पढ़ने के पश्चात आप क्रैमिंग नहीं करना चाहिए, आपको उनको अपने बेसिक जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं उनको ही शो करना है, उनको ही लिखना है। ओके।